Hello everyone. In last lecture, topic number 14, that is basic principles of organic chemistry in 11th standard, we are starting the introduction part. In this introduction part, we are already completed C1 to C10 table, then C11 to C20 table, then we are completed types of carbon atom and types of hydrogen atom also. In these types of carbon atom, we are completed 4 types: primary carbon atom, secondary carbon atom, tertiary carbon atom and quaternary carbon atom. And then types of hydrogen atom में हम लोगों ने कंप्लीट किया है प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम एंड टर्शियरी हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल, एनसीईआरटी लेवल एज वेल एज सीईटी, नीट एंड जेई लेवल. मैंने एक एग्जांपल भी ले लिया है हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम फ्रॉम गिवन कंपाउंड. ओके, देन हम लोगों ने कंप्लीट किया है अल्काइल ग्रुप. In this alkyl group, we are already completed different types of alkyl group according to state board level, NCERT level, and CET, NEET and JEE level also. These are the alkyl groups are very important. And different types of alkyl groups means different types of another groups beside alkyl group. We are completed this lecture. Okay. अभी हम लोगों ने कौन कौन से alkyl group complete किए हैं? तो हम लोगों ने complete किए first methyl group, then ethyl group. They are mainly, methyl group are mainly obtained from methane. Ethyl group, it is mainly obtained from ethane. Then propyl group. In this propyl group having 2 types, N-propyl and secondary or isopropyl. Then butyl group. These butyl group are classified into 4 types: N-butyl, secondary butyl, tertiary butyl and isobutyl. And pentyl, these pentyl are classified into 5 types, is nothing but the N-pentyl, then free bond attached to the primary carbon atom, no branching or straight chain. Secondary pentyl, free bond attached to the secondary carbon atom, in total number of carbon atom is 5. Then tertiary pentyl, free bond attached to the tertiary carbon atom, total carbon atom is 5. Then neopentyl means free bond attached to the primary carbon atom having branching, means second number having got 2 methyl group. And last one isopentyl, free bond attached to the primary carbon atom, total carbon atom is 5 and branching, these are means second number having got 1 methyl group. These are the different alkyl groups are very important. We are already completed. Now we are starting the new point, that is according to CET, NEET and JEE level is nothing but the वेरी इंपॉर्टेंट. एक ग्रुप आप लोगों को पता ही होना चाहिए, कंपलसरी है, क्योंकि ये अगर आप लोगों को मालूम हो गए, ये आप लोगों को समझ में आ गए, तो आप लोगों के 11 प्लस 12 एज वेल एज सीईटी, नीट एंड जेईई लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व करने वाले. मीन्स अल्काइल ग्रुप टोटल है अपने 13 जो मैंने सिखाए हैं, और उसके बाद में ये 7 टोटल हो गए 20. ये 20 ग्रुप्स अल्काइल प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आप लोगों को पता होने के लिए मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा. ये इजी है, आप लोगों को इजीली पता हो जाएगा. फर्स्ट अगर देखा जाए तो फिनाइल. ओके, व्हाट इज फिनाइल ग्रुप? फिनाइल मींस फिन मींस बेंजीन रिंग, मींस फिन. बेंजीन रिंग मींस आप लोगों को पता है, बेंजीन रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय C6H6. ओके, C6H6. अभी इसमें से 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस किया. फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया C6H5, 1 हाइड्रोजन इज आल्सो नथिंग बट द बेंजीन रिंग. मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, दिस इज नथिंग बट द फिनाइल ग्रुप, दैट इज अल्काइल. ओके, मींस इट इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरोमेटिक रिंग, दैट इज बेंजीन रिंग. मींस बेंजीन मींस C6H6, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस फ्रॉम बेंजीन टू फॉर्म फिनाइल ग्रुप, दैट इज फिनाइल. इट इज आल्सो कॉल्ड एज अराइल ग्रुप. It is also called as aryl group also. Both are similar, phenyl और aryl. but they are represented by structural formula क्या होगा? तो इसका बेंजीन, अगर मैंने इधर कंप्लीट कर दिया तो बेंजीन हो गया, लेकिन उसमें से 1 हाइड्रोजन हम लोगों को रिप्लेस करना है, तो इधर फ्री बॉन्ड लिखना है. तो फ्री बॉन्ड हैविंग बेंजीन रिंग इज नथिंग बट द फिनाइल ग्रुप. ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए. मींस इट इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम बेंजीन, दैट इज फिन मींस बेंजीन. Then or aryl means arine means also benzene. Second one benzyl group. What is mean by benzyl group? Benzyl group means क्या है? आप लोगों को बेंजाइल, इसका मतलब वायल है, इसका मतलब हम लोगों को फ्री बॉन्ड एक अटैच है और बेंजीन को अटैच है और उसमें और एक जेड लगाया है, इसलिए थोड़ा सा अलग रहेगा.
आप लोगों को पहले बेंजीन रिंग बनाना है, एक बेंजीन रिंग बनाया, डायरेक्टली मैंने इधर फ्री बॉन्ड दिया तो ये फिनाइल ग्रुप हो जाएगा, लेकिन इधर लिखा है बेंजाइल ग्रुप, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो इसमें डिफरेंस है, इधर CH2 लिखना है और एक फ्री बॉन्ड लिखना है, तो इज नथिंग बट द बेंजाइल ग्रुप। दीज आर फिनाइल ग्रुप, दीज आर नथिंग बट द बेंजाइल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट बेंजाइल ग्रुप। अभी बेंजाइल बेंजल और बेंजो में क्या डिफरेंस है? दीज आर द सिमिलर, बट थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है वो आप लोगों को इधर आराम से दिख जाएगा। बेंजाइल मींस बेंजीन हैविंग अ CH2 फ्री बॉन्ड। देन बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप में क्या करना है? तो इसमें हैविंग बेंजीन रिंग, ए वाला इधर है, ओके, हैविंग बेंजीन रिंग CH। अभी CH2 है ना, तो इसको मैंने इनकम्प्लीट कर दिया, एक 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया CH। अभी CH क्या, तो इसके फ्री वैलेंसी रहेंगे, तो इसके पास 2 फ्री वैलेंसीज है, इज नथिंग बट द बेंजाइल ग्रुप। ओके, बेंजाइल बेंजाइल ग्रुप। देन बेंजो ग्रुप, व्हाट डू यू मीन बाय बेंजो ग्रुप? बेंजो ग्रुप मींस बेंजीन रिंग, बेंजो मींस बेंजीन रिंग तो कंपल्सरी आनी चाहिए, बेंजीन हैविंग कार्बन एटम। अभी CH2 1 हाइड्रोजन रिप्लेस किया है CH, अभी ए भी हाइड्रोजन हम लोगों को रिप्लेस करना है C, तो टोटल 3 वैलेंसी इधर आ जाएंगे, इज नथिंग बट द बेंजो ग्रुप। ओके, आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में विचार पूछे जा सकते हैं। विच टाइप? CET नीट लेवल, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। अभी इसमें से बेंजाइल ग्रुप कौन सा है? तो ए वाला बेंजाइल ग्रुप है, तो क्लोराइड ग्रुप किधर अटैच करना है? तो इधर Cl अटैच करना है, जिधर फ्री बॉन्ड है उधर वो फ्लोरी फंक्शन ग्रुप जो मैंने बोला है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल अल्कोहल, अल्कोहल बोला तो इधर OH ग्रुप अटैच करना है। बेंजाइल क्लोराइड तो इधर क्लोरीन ग्रुप अटैच करना है। बेंजाइल ब्रोमाइड इधर Br ग्रुप अटैच करना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप आपके दिमाग में ए होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों को बेंजो ग्रुप। देन फिनाइल ग्रुप, फिनाइल मीन्स क्या? फिनाइल मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री बॉन्ड इज नथिंग बट द फिनाइल ग्रुप। CH2 डबल बॉन्ड CH free bond is nothing but the phenyl group. In this phenyl group, 2 carbon atom having double bond with free bond is nothing but the phenyl group. Then allyl group. In this allyl group is nothing but the CH2 double bond CH bond CH2 free bond. इसे कहते हैं अलाइल ग्रुप। दोनों में क्या डिफरेंस है? इधर 1 कार्बन एक्स्ट्रा है, दैट इज मिथिलीन ग्रुप एक्स्ट्रा है, मींस विनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री बॉन्ड। व्हाट इज अलाइल? CH2 डबल बॉन्ड CH2 free bond is nothing but the allyl group. And last one, propargyl group. Propargyl group is nothing but the CH triple bond C bond CH2 free bond. Means double bond having 2 carbon atom free bond is nothing but the phenyl. Double bond atom having 3 carbon atom double bond with free bond is nothing but the allyl group. And 3 carbon atom having triple bond with free bond is nothing but the propyl group. These are the very important one. आप लोगों को इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट? द IUPAC नेम ऑफ फिनाइल क्लोराइड। अभी विनाइल ग्रुप कौन सा है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, दिस वन, दिस आर द विनाइल क्लोराइड। अभी इसका IUPAC नेम आप लोगों को हाइड्रोकार्बन के टॉपिक में, अल्किन्स टॉपिक में मिल जाएगा, या फिर कुछ IUPAC नेम मैं भी सिखाने वाला हूं, उसी में भी आप लोगों के IUPAC नेम दैट इज नोमेनक्लेचर पार्ट का आप लोगों को मिल जाएगा। मींस इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और CET नीट जेईई के ए भी क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? द IUPAC नेम ऑफ अलाइल ब्रोमाइड। अभी अलाइल ग्रुप कौन सा है तो अलाइल ग्रुप आप लोगों को देखना है, तो दिस वन इज द अलाइल ग्रुप, मींस फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द Br, मींस इधर Br अटैच कर दिया तो इसका जो IUPAC नेम रहेगा, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट। मींस आप लोगों को जो मैंने अल्काइल ग्रुप सिखाया है इज नथिंग बट द 13 अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल के 2 टाइप्स, N सेकेंडरी और आइसोप्रोपाइल, देन थर्ड ब्यूटाइल, ब्यूटान के 4 टाइप्स, N ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल एज वेल एज लास्ट वन इज नथिंग बट द आइसोब्यूटाइल, और पेंटाइल के 5 ग्रुप्स। टोटल मिला के आप लोगों को देखा जाए तो 13 ग्रुप्स है, और ए अकॉर्डिंग टू CET नीट जेईई लेवल के 7 ग्रुप है, टोटल 20 ग्रुप्स है, जो हमें 11, 12 एज वेल एज CET नीट जेईई लेवल के सभी के लिए इंपॉर्टेंस है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए पूछे भी जा सकते, ओके।
Last point in this same topic, that is topic number 14, basic principles of organic chemistry. We are starting in introduction part, and in this introduction part we are starting the new point is nothing but the general characters of organic compound. These importance points because आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मालूम होने चाहिए, और दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो भी जनरल कैरेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट है, ओडर है, ओके, उसके सोलुबिलिटी का टेस्ट है, ये सब आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। इसलिए सिर्फ जनरल कैरेक्टर हम लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है। ये पॉइंट हम लोगों को किधर भी नहीं मिलेगा, मीन्स अपने रेगुलर बुक में नहीं है, लेकिन ये पॉइंट अगर आप लोगों को पता हो गए तो इसका पॉइंट हम लोगों को आगे जाके डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स में इसके सब पॉइंट यूज होने वाले हैं। इसलिए हम लोगों के छोटे छोटे जो बेसिक पॉइंट्स है आप लोगों को मैं कंप्लीट करके देता हूं। इसमें फर्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए इज नथिंग बट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज द जनरल कैरेक्टर्स मीन्स, एक अगर मैंने कौन सा भी एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल अल्केन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल अल्कीन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल अल्काइन दैट इज मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल। और उस एग्जाम्पल के कंपोजिशन में क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ लिंकेज, व्हाट इज मीन बाय आइसोमेरिज्म, ये डिटेल में हम लोगों को स्टडी करना है। उसमें फर्स्ट जनरल कैरेक्टर, इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कौन सा, राइट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 मार्क्स। अगर 2 मार्क्स है, मैंने इधर टोटल 10 जनरल कैरेक्टर्स लिखे, इसमें से कम आप लोगों को 4 कंप्लीशन करना है। अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, राइट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 3 मार्क्स, तो कम से कम आप लोगों को इसमें से 3 पॉइंट, टोटल 6 पॉइंट्स लिखने जरूरी है। 6 पॉइंट्स यानी कि 10 में से कौन से भी 6 पॉइंट लिखो, उसकी डेफिनेशन लिखो और एक एग्जाम्पल लिख लिया तो भी चलेगा। इसमें आप लोगों को ईच और एवरी पॉइंट हैविंग अप हाफ मार्क्स, टोटल आपको 3 या 2 मार्क्स मिल जाएंगे। मीन्स सिंपल पॉइंट्स है जो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इज नथिंग बट द कंपोजिशन। व्हाट इज मीन बाय कंपोजिशन, कंपोजिशन मीन्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम लोगों को ये वाला पॉइंट स्टडी करना है, कंपोजिशन। ओके, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एटम एंड बिसाइड कार्बन दे कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ओके, कौन सा भी हो सकता है। मीन्स आप लोगों ने अगर कौन सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया तो मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिक मीन्स कंपोजिशन में उसमें रहने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स वो इसमें आ जाएंगे। कंपोजिशन मीन्स मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एटम, बिसाइड कार्बन एटम वी आर कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा। दीज आर द फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकेंड पॉइंट इज नथिंग बट द टाइप ऑफ लिंकेज। व्हाट इज मीन बाय टाइप ऑफ लिंकेज, अगर कार्बन कार्बन एटम में देखा जाए, ओके, आप लोगों को इधर थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। मैंने अभी एक कार्बन कार्बन एटम जिसमें कंपोजिशन में ए वाला हो जाएगा, कार्बन एटम तो रहेगा। अभी इसमें कंपोजिशन में देखा जाए तो ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया, दैट इज प्रोपेन। इन दिस प्रोपेन दिस आर द कंपोजिशन में कार्बन एटम इज द मेन एंड बिसाइड कार्बन हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम भी हो सकता है, नाइट्रोजन एटम भी हो सकता है। ओके, कौन सा भी कंपाउंड इसमें आता है। अगर नाइट्रोजन में देखा जाए तो ए वाला एग्जांपल आप लोगों को पता हो सकता है। इसमें देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है। ऑक्सीजन वाला ग्लूकोज का ले लीजिए, C6H12O6, वो भी कॉम्पोजिशन में आ सकता है। ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड देखा जाए इज नथिंग बट द टाइप ऑफ लिंकेज। टाइप ऑफ लिंकेज मीन्स क्या, जो कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, 1 2 3 4, जो कार्बन कार्बन एटम बॉन्ड है हैविंग सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। मीन्स अल्केन रहेगा तो सिंगल बॉन्ड, अल्किन रहेगा तो डबल बॉन्ड, अल्काइन रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। मीन्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कोवैलेंट लिंकेज, टाइप ऑफ लिंकेज। ओके, इसमें दे आर कंटेन सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। मीन्स टाइप ऑफ लिंकेज में आपको क्या लिखना है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कोवैलेंट लिंकेज हैविंग सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट द आइसोमेरिज्म। व्हाट इज मीन बाय आइसोमेरिज्म। ओके, ये जो पॉइंट है, अब अभी मैं इधर सिखाने वाला सिर्फ डेफिनेशन और उसका एक एग्जांपल, बट इसका जो है डिटेल स्टडी हम लोगों को बाद में करना है, जिसमें टोटल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 और 4 मार्क्स के लिए अलग सा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम लोगों को डिटेल में बाद में स्टडी करना है। अभी सिर्फ आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मीन्स क्या, दीज आर द
phenomenon in which the compounds having same molecular formula but different structural formula is called isomerism. What is mean by isomer? Isomer means क्या? These are the compounds having same molecular formula but different structural formula is called as isomer. For example, हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं. ए वाला इज नथिंग बट द एन ब्यूटेन, और एक सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1 2 3 और 4. इसमें अगर देखा जाए तो इस कार्बन की वैलेंसी हम लोगों को कंप्लीट करने हैं, तो कंप्लीट करने के लिए ऑलरेडी 1 वैलेंसी है तो इधर हो जाएगा CH3. टोटल कंप्लीशन करने के लिए 4 वैलेंसी रहेगी कार्बन की, तो हाउ मेनी हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड 3, सो CH3. इसमें कितने हाइड्रोजन रिक्वायर रहेंगे, तो हाउ मेनी हाइड्रोजन आइटम्स आर रिक्वायर्ड दिस कार्बन आइटम हैविंग 2 वैलेंसी ऑलरेडी है, तो 2 वैलेंसी, इसकी 2 और इसकी 3 वैलेंसी कंप्लीट कर. सेम इधर भी CH3 CH3 CH3. अभी इसमें क्या है, इसमें 3 वैलेंसी ऑलरेडी है, कार्बन की वैलेंसी 4 रहती है, तो उसमें और कितने हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट है, तो ओनली 1, तो 1 हाइड्रोजन दे दिया तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा. अभी इस दोनों में देखा जाए तो दिस कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला. अभी इसका मोलिकुलर फार्मूला मींस क्या, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4. टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने हैं, देखिए 3 2 5 3 2 5 मीन्स C4H10. These are the molecular formula, these are the structural formula. Next, इसमें से अगर देखा जाए तो इसके टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, तो C4 है. टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने हैं, देखिए 3 3 6 3 9 1 10. दैट इज, आप लोगों को अभी क्या समझ में आ गया, हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. मीन्स इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है. इसका नेम है एन ब्यूटेन, इसका नेम है आइसोब्यूटेन. मीन्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दैट इज कार्बन स्केलेटन, मीन चेंज ऑफ कार्बन स्केलेटन. मीन्स these are the phenomenon in which the compounds having same molecular formula but different structural formula or different carbon skeleton or different position of double bond or triple bond or different position of functional group or different functional group. These are nothing but the isomerism, and this compound that is N-butane, isobutane is called as isomers of each other. Okay, these are nothing but the third point, isomerism. Next point is nothing but the polymerization. What do you mean by polymerization? Polymerization means polymer. दिस टॉपिक पॉलीमर टॉपिक आप लोगों के लिए कंप्लीशन बाद में करना है. मींस ये टॉपिक जो है 12th के लिए है. 12th में पॉलीमर नाम का एक छोटा सा टॉपिक है, जिस टॉपिक में आप लोगों को इतने बहुत सारे रिएक्शंस इसकी स्टडी करने, लेकिन इसका जो छोटा सा पार्ट है आप लोगों को इसी टॉपिक में कंप्लीशन करना है. व्हाट इज पॉलीमरेशन, दैट इज पॉलीमर. पॉलीमर आप लोगों को कंप्लीशन करने से पहले आप लोगों को क्या मालूम होना चाहिए, मोनोमर. व्हाट इज मोनोमर? मोनोमर मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल्स, ओनली वन मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज मोनोमर. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज नथिंग बट द मोनोमर, इज नथिंग बट द इथीन. इसको इथीन कहेंगे. इथीन मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल, इथीन दैट इज मोनोमर, वन ही मॉलिक्यूल मैंने लिया. ओके, अभी इसको मैंने क्या कर दिया, N नंबर ले लिया. N मीन्स 1 2 3 4 कौन सा भी नंबर ले सकते हैं. मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन, 5 molecules of ethene, 100 molecules of ethene आप लोग से थे. These are the monomer, these are the n number of monomers मैंने ले लिए, और इसके ऊपर मैंने पॉलीमरेशन कर दिया. मीन्स इसके डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं. अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए हीटिंग कर दिया. मीन्स इधर LDP HDP ऐसे बहुत सारे टाइप्स है जो आप लोगों को बाद में स्टडी करना है. लेकिन इथीन, n number of ethene that is monomer undergoes polymerization to form. इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें इस तरह का कंपाउंड बन सकता है. मीन्स डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और एक ब्रेक होने के बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इस टाइप का एक कंपाउंड बन जाएगा. अभी ये n नंबर लिया है, आप लोगों को पता नहीं ये नंबर 1 है 2 है 3 है, 100 हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, तो मैंने n नंबर इधर लिख दिया. अभी इसमें और इसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है. ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और इसका एक चेन हो गया, दैट इज लीनियर चेन. मीन्स एक मॉलिक्यूल इथीन का एक ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, अनदर मॉलिक्यूल इथीन का ऐसा सेकेंड ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें यही सेम लिखा जा सकता है. फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे कितने हो गए, जो इधर आप लोग नंबर लिखे. इधर 10 लिखा है तो 10 ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा, इधर 100 लिखा है तो 100 ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा. मैंने इधर n लिखा है तो इधर n ब्रैकेट
आप लोगों के सामने n ब्रैकेट मैंने कंप्लीट कर दिया। तो इसे कहते हैं पॉलीइथीन। पॉलीइथीन मीन्स phenethene undergoes polymerization to form polyethene. Means what is polymerization? ओके आप लोगों को समझ में आ गया। पॉलीथीन, पॉलीथीन आप लोगों को पता होगा, इट इज मेनली यूज्ड फॉर द कैरी बैग्स, प्लास्टिक बैग्स, दीज आर द पॉलीथीन। ओके व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीथीन? पॉलीमरेशन, दीज आर द फिनोमिनन इन विच द कंपाउंड्स हैविंग, ओके द फिनोमिनन इन विच द कंपाउंड्स हैविंग दैट इज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, large number of small molecule, that is nothing but the monomer, combine together to form a long chain. okay straight chain रहेगी या फिर open chain रहेगी या फिर close chain भी रखते हैं, long chain, straight chain भी रहेगी, कुछ भी रहेगी, to form a high molecular weight compound is called polymerization. Means these are the phenomenon in which large number of small molecules, that is monomer, combine together to form a long chain or cyclic chain by high molecular weight compound is called polymerization. ठीक है, these are monomer, these are polymer. आपके पास एक एग्जांपल है, इथिन से हम लोग क्या बना सकते हैं? पॉलीथीन, एंड दिस पॉलीथीन आर यूज्ड फॉर द कैरी बैग्स, प्लास्टिक बैग, आप लोगों को पता है प्लास्टिक बकेट रहेगा, जो भी है प्लास्टिक का, सभी इस रिएक्शन में कंप्लीशन करना। नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। What is melting and boiling point? Most of the organic compound having low melting and low boiling point. Most of the organic compounds having low melting and low boiling point. But increases melting and boiling points of organic compound with increases molecular mass. Means अगर मैंने मीथेन ले लिया, इथेन ले लिया, प्रोपेन ले लिया, ब्यूटेन ले लिया, अल्केन की एक सीरीज ले ली, इसमें जिस जैसे कार्बन एटम बढ़ेगा जैसे उसका मोलिकुलर मास भी बढ़ेगा, जिस जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मींस मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, बट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास। देन solubility. Solubility means these organic compounds are soluble or insoluble. Most of the organic compounds are insoluble in water, but highly soluble in organic solvent like benzene, ether, alcohol, etc. अगर आपने देखा है फॉर एग्जाम्पल अल्केन के अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, फिर अल्कीन के अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, तो आप लोगों को पता होगा कि अल्केन आर इनसोल्युबल इन वाटर बट हाईली सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दीज आर द, मैं जनरल में बात कर रहा हूँ कि जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम लोग सिर्फ अल्केन की ही बात नहीं कर रहे, हम लोग जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनसोल्युबल इन वाटर बट हाईली सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, एक्सेट्रा। देन कंबस्टिबल इन नेचर। व्हाट इज मीन बाय कंबस्टिबल नेचर? कंबस्टिबल मीन्स these are the compounds having combust, मुझे most of the organic compounds having combustible nature, they gives thermal energy, this provide thermal energy is called as combustible nature. For example alkane having a thermal combustible nature means अगर मराठी में बोल दिया है तो इसका क्या अर्थ है? जो आपल्या आपल्यात जळून जातो आणि दुसऱ्यांना हीट देतो, मीन्स इव्होल्युशन ऑफ हीट and give the thermal energy provide करतो, त्याला म्हणतात combustible in nature. Means these are the compounds which provide the heat or evolution of heat and gives thermal energy, provide the thermal energy. This nature is called as combustible in nature. Last point is nothing but the functional group. What is functional group? These are the elements or group of elements impart the characteristic properties of chemical property, that is impart properties of, it means chemical properties is nothing but the functional group. For example अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, सेकेंड एग्जांपल लिया CH3 बॉन्ड CH2 OH, मैंने थर्ड एग्जांपल लिया CH3 बॉन्ड CH2 NH2। अभी तीन एग्जांपल में आप लोगों को क्या समझ में आ जाएगा? इधर देखा जाए तो ए वाला जो ग्रुप है ये सिर्फ अलग है, बाकी सब सेम टू सेम है। इसमें भी इथाइल ग्रुप है, इसमें भी इथाइल ग्रुप है, इसमें भी इथाइल ग्रुप, दैट इज अल्काइल ग्रुप। बट ये जो स्क्वायर के लिए जो मैंने किया है स्क्वायर वाले कंपाउंड, ये थोड़े से अलग है। क्यों अलग है? दीज आर द फंक्शनल ग्रुप, दैट इज एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट इम्पार्ट द डिफरेंस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके,
इसमें क्या हो जाएगा, इसका देखा जाए तो इसका नाम है इथाइल क्लोराइड, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अमाइन। इसमें चेंज किस तरह से होगा, सिर्फ एक ग्रुप अटैच हो गया इस इथाइल ग्रुप को तो इसका नाम चेंज होगा, एक ग्रुप इधर अटैच होगा इसका नाम चेंज होगा, एक ग्रुप इधर अटैच होगा इसका नाम चेंज होगा। मींस दीज आर द फंक्शन, दीज आर द एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन कंपाउंड इज नथिंग बट द फंक्शनल ग्रुप। इस तरह के बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हम लोगों को स्टडी करने हैं, आप लोगों को भी बाद में मैं ये सब फंक्शनल ग्रुप सिखाने वाला हूं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए ओडर। What is odor? Odor means smell. Organic compound के smell कैसे रहेंगे? Most of the organic compounds having odor, that is characteristic odor. Characteristic odor means particular odor. Or most of the organic compounds having odorless. For example, alkane having a odorless compound. Alkene having also odorless, but ethene having a characteristic odor. फॉर एग्जाम्पल अदर एग्जाम्पल लिया जाए तो ईथर हैविंग अ ओडर, हैविंग अ स्वीट ओडर, मीन दिस ओडर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ओडर। फॉर एग्जाम्पल ईस्टर हैविंग स्वीट ओडर, देन अल्केन हैविंग ओडरलेस, अल्कीन हैविंग ओडरलेस बट इथीन हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर। लास्ट पॉइंट देखा जाए होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मीन्स क्या, दीज आर द सीरीज इन विच having same general formula, same functional group, but successive members depend on each other by methylene group is called as homologous series. For example आप लोगों को जल्द से जल्द पता हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। These are nothing but the ethyl alcohol. सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया CH3 CH2 CH2OH. These are nothing but the propyl alcohol. नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया CH3 CH2 CH2 CH2OH. These are nothing but the ब्यूटाइल अल्कोहल। इस तीन एग्जाम्पल में आप लोगों को डिफरेंस क्या लगेगा, इस सभी का अगर जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो CnH2n प्लस 1 OH, दैट इज जनरल फॉर्मूला। मीन्स C2H5, अगर n की नंबर मैंने 2 लिखा तो हाइड्रोजन की वैल्यू 5 हो जाएगी, इसमें 5 है, और OH सभी का जनरल फॉर्मूला सेम है, having same functional group also, same general formula, same functional group। इसमें देखो OH ही है, इधर देखो OH है, इधर देखो OH है, means same general formula, same functional group। These are the series, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल सीरीज, अल्कोहल की सीरीज बोलोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, दे बट दी सक्सेसिव मेंबर 1 2 आर डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप। अभी इसमें देखा जाए तो ये CH3 इधर है, इधर भी CH3 है, इधर CH2 है, इधर भी CH2 है, बस ये दोनों में क्या डिफर है, ये वाला ग्रुप डिफर है, ये दोनों में सक्सेसिव मेंबर में। अभी ये दोनों सक्सेसिव मेंबर में 3 कार्बन एटम है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, बट ए वाला थोड़ा सा डिफर है, एक्स्ट्रा है, मीन्स दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर सक्सेसिव मेंबर आर बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड मीन्स मिथिलीन ग्रुप। व्हाट इज मीन बाय होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज मीन्स most of the organic compounds having same general series, having these are the series in which same general formula, same functional group, but the successive members are differ from methylene group is nothing but the homologous series. Okay, these are the very important according to state board level. In this state board level फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द जनरल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 और 3 मार्क्स। 2 मार्क के लिए आप लोगों को 4 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं और 3 मार्क्स के लिए आप लोगों को 6 पॉइंट कंप्लीट करने हैं। तो कौन कौन से पॉइंट है, मैं एक बार सिर्फ पॉइंट बोलता हूँ। फर्स्ट इज नथिंग बट द कॉम्पोजिशन, से टाइप ऑफ लिंकेज, थर्ड वन इज नथिंग बट द आइसोमेरिज्म, फोर्थ वन इज नथिंग बट द पॉलीमरेशन, फिफ्थ वन इज नथिंग द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सिक्स्थ वन इज नथिंग बट द solubility, then combustible in nature, then functional group, then देखा जाए तो odor, and last point is nothing but the homologous. These are the very important points in the general characteristics of organic compound. Thank you.